जो हमारी सरकार है, और ये मुझे सबसे बड़ा इशू है मेरा इंडिया के साथ, कि कोई भी सरकार आए, जो फंडामेंटली उनका डीएनए रहता है, जो जो एकदम बिलीफ रहती है, वो मेरे ख्याल से स्टैटिज्म और सोशलिज्म ही है। कैपिटलिज्म के बारे में बात करते हैं तो पहले भी ऐसी सरकारें आई हैं, तो ये ज्यादातर क्रोनी कैपिटलिज्म होता है, हम देखते हैं इमर्जिंग मार्केट्स में खासकर से। पर बहुत कम सरकारें होती हैं इंडिया में भी, अगर आप देखें, जो ट्रू कैपिटलिज्म में बिलीव करती हैं। और ट्रू कैपिटलिज्म का मतलब रहता है कि आप प्राइवेट सेक्टर को जितना ढील दे सके दीजिए, बस उनको सपोर्ट करिए। पर हमारे जो डीएनए है, और ये सिर्फ सरकारों का नहीं, पर हमारे जो इंडियन एलीट हैं उनका भी ये है, वो कंट्रोल का डीएनए है कि कंट्रोल कैसे करें, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसे करें, एक स्कीम के बाद क्या लॉन्च करें, इस नाम पे कि हम गरीबों को मदद कर रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि अगर आप 70 साल में हमने 1000 स्कीम लॉन्च करी है और उसका क्या नतीजा रहा है। सो स्टेट कैपेसिटी जो इंडिया में है, उसका एम्बिशन बहुत है कि हमें 1000 स्कीम लॉन्च करनी चाहिए, गरीबों को की मदद करनी चाहिए। पर 70 साल के बाद भी अगर आप देखिए कि हमारी पर कैपिटा इनकम लेवल क्या है, वो फिर भी बहुत ही लो है और देशों के मुकाबले। सो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की यही है कि हमारा जो डीएनए है, और ये सिर्फ पॉलिटिकल क्लास के नहीं, पर आम आदमी का भी, वो काफी गवर्नमेंट में बहुत थोड़ा ज्यादा ही बिलीफ है, और स्टैटिज्म और सोशलिज्म के तरफ ज्यादा ही झुकता है। Internal globalization, what I mean is the whole country has to be a single market and a single point of single portability of service delivery. And my theory is that external globalization has slowed down because, as you know, that many countries are now putting all kinds of barriers. Global trade has come down and so on. But India is like a continent. I mean, it has 1.3 billion people spread over a large mass. And rather than think of them as different markets, a single market, like GST has brought about a single tax system for the country. The one ration card, one nation will create a single PDS system for the country. The FASTag, which is the RFID tag for toll payment, is one system for the whole country. And now the announcement that the APMC Act would be essentially dismantled, allowing farmers to trade anywhere. These are all very necessary steps because we have to use our scale to create internal globalization so people can live anywhere, buy anywhere, sell anywhere, get the services anywhere. And that is a way to create economic growth inside the country. The government has taken considerable steps. On the fiscal side, there's about 7% of GDP that's been deployed. That's really sizable. But if you look at the mix of measures that they have taken, it's been mostly measures that help with liquidity, so in the form of lending, lending support, helping with credit guarantees, and much less in the form of more direct spending, which has been more closer to around 2% of GDP, which is what we're seeing around the world, is that these direct support measures, which put income into the hands of low-income households or into SMEs, seem to have a much bigger impact in terms of bringing back a faster recovery. So we think that there is space to do more on that front in terms of stimulus, the more direct stimulus, expanding it to both urban poor and rural and migrant workers, and also some of these schemes have expired or are going to expire, and I think there's scope to increase it. On the monetary policy side, again, many significant measures have been taken. We see scope for more monetary easing, especially after this inflationary spike comes down, some of which will be transitory because there's still very low levels of demand, overall demand. So there's more that can be done there. And the third is in terms of public investment. The government has announced very considerable packages on that front, and that's a very welcome step.
that can also help with bringing about a faster recovery and also with creating jobs. हिंदुस्तान में हमें रोटी इंप्रूव करनी है और रोटी का मीनिंग है रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। तो जो हम समय की वैल्यू करने की जो जरूरत है, यानी हमें समय बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स है, तो रोटी स्पीड करने की कोशिश करनी चाहिए हर सेगमेंट, अप्रूवल्स, स्पीड ऑफ सेटिंग अप प्रोजेक्ट्स, गेटिंग थिंग्स मूविंग। Therefore, roti and improvement of roti is one of India's biggest opportunities in this period. I think the next step is on the fundamental view that अगर देश की कहीं भी पूंजी हम लगा रहे हैं, तो वो जो देश की पूंजी लगा रहे हैं उसमें हमें रिटर्न क्या मिला। और कोई भी एसेट हो, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, वो नेशनल एसेट है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल जस्ट एज रिटर्न ऑन टाइम, these are very important first principles we may ask. In the short run, maybe we may say that I need to change direction and take interest which is public interest. But in the long run, we need to go back to first principles. And each of our asset as a nation, हमें ये question पूछना चाहिए, अगर वो asset 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल से प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर, देश की पूंजी जो वहां लगी हुई है उसका उपयोग ठीक से हुआ है या नहीं, और अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, और क्या करेक्टिव मेजर्स की और चेंजेस हमें करने चाहिए। सबसे ज्यादा जो है ऐसे सिचुएशन में सरकार का रोल बहुत जरूरी है। सरकार का सबसे बड़ा रोल होता है इकोनॉमी मैनेज करने में कि आप अनसर्टेनिटी कम करिए। ये जो रिस्क और अनसर्टेनिटी है कि कब तक चलेगा, क्या सिचुएशन है, कितना इन्वेस्ट करें, मार्केट कब अपटेक होगा, ये सब इंफॉर्मेशन और एक किस्म से आई थिंक गवर्नमेंट का रोल ऐसे सिचुएशन में बहुत बढ़ जाता है। सो अनसर्टेनिटी मैनेज करना सरकार का रोल है। तो हम लोगों ने जैसे शुरुआत के 5-6 अनाउंसमेंट्स किए, उसमें ज्यादातर एम्फेसिस था ह्यूमैनिटेरियन स्ट्रक्चर का, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ 5% एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। हमारे यहाँ कैजुअल लेबर सबसे ज्यादा हार्डेस्ट हिट है इस कोरोना के कारण। तो शुरुआत के ज्यादातर जो अनाउंसमेंट्स थे, जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन थे, वो सब ह्यूमैनिटेरियन थे कि हमारे यहाँ भूखमरी न हो, हम लोग सब लोग घर पहुंच जाए, बेसिक खाने पीने का, बेसिक हेल्थ केयर जो सब एकदम जो बहुत बेसिक रूडिमेंट्री लेवल पे जो कहेंगे वो लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन इकोनॉमी सिर्फ बेसिक ह्यूमैनिटेरियन लेवल तक नहीं सीमित रह सकता। इसीलिए बाद के जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, एजुकेशन में हो, लेबर, ये सब ये सोच के किया जा रहा है कि अब हम लोग सप्लाई की तरफ से कॉस्ट को घटाएं, इकोनॉमी थोड़ा और लिबरलाइज रिफॉर्म करें कि आगे जाके जब अनसर्टेनिटी और रिस्क घटता है तो एक इकोनॉमिक रिकवरी होगी। लेकिन अभी भी सरकार का रोल बहुत ज्यादा है संजय जी। हमें लगता है सरकार को अभी भी आगे आके क्लियरली ये समझाना होगा कि हम लोग अब इतना पैसा खर्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन एरियाज में करेंगे, इस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक स्ट्रैटेजी है, वो बढ़कर लोगों को समझाना अभी बाकी है। डिजिटल सुपर साइकिल, उसमें जो जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे, उसके लिए हम थे वेल पोजिशन्ड है, ब्रॉडबैंड है, क्वालिटी है, कॉस्ट लो है। एंड आज मेरे हिसाब से रूरल कनेक्टिविटी और अर्बन कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये एरिया में जो जॉब्स विल कम अप एट ए रैपिड पेस, मच फास्टर देन व्हाट वी हैव थॉट, और उसको रीस्किल करके वहां जाना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज द टाइम टू ग्रो, दिस इज द टाइम फॉर यू, बिकॉज you have been handed a never before opportunity, because I call this मैंने पहले एक सोचा था नाम के a reset of the mind has happened, minds have been reset, and वो इतना speed से हुआ है, I called it has happened in a blink. So the mind has been reset in a blink. अगर ये हुआ है तो you have to see whether your mind is reset and what does this new reset give you as opportunity. I think that will change
your future and you will change the future of the country. इसके इस जरिए से